Exam Dost, Success का host, सैनिक नवोदय में topmost. Hello and welcome everybody to the topic of the rise of Marathas. Friends, as we start this topic, imagine a powerful army has surrounded a fort. This fort is the Panhala Fort or Panhalgarh Fort. A powerful army has surrounded a fort. The food inside the fort is running out. The escape from this fort is nearly impossible. And suddenly the enemy captures Shivaji Maharaj. The enemy, after capturing Shivaji Maharaj, celebrates. But there is one problem. They have captured the wrong Shivaji. Today, we are not going to study the rise of the Maratha Empire like a chapter. We are going to enter the world of strategy, courage, intelligence, and Swaraj. The story of the wrong Shivaji. The period of which we speak is 1660. Shivaji Maharaj is at Panhala Fort. And the fort is under siege by the forces of Siddhi Johar. The situation is becoming extremely dangerous. And this siege had placed Shivaji in a difficult position, and eventually an escape towards Vishalgarh was planned. From the Panhala fort, they planned an escape to Vishalgarh. But there is a huge problem. How do you escape when the enemy is watching all the possible routes of Panhala fort? How will you leave the fort when enemy is surrounded you with massive forces? Now, what Shivaji Maharaj cleverly did, he found a man who looked remarkably same as शिवाजी महाराज. उन्होंने एक ऐसे पर्सन को ढूंढा जो बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देता था. His name was Shiva Kashid, who resembled Shivaji Maharaj, and he agreed to act as a decoy. And the real Shivaji, while the real Shivaji escaped. Now, think about the mental situation of Shiva Kashid. Shiva Kashid के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब उनसे यह कहा गया होगा कि आपको शिवाजी महाराज बनना है, शिवाजी महाराज की तरह आपको बनकर पोर्ट्रे करना है एनिमी के सामने. Shiva Kashid knew that if enemy will catch him, if they caught him, they would believe they have captured Shivaji Maharaj. But if they discovered the truth that he is not the real Shivaji Maharaj, Shiva Kashid could lose his life. उसकी जान ली जा सकती थी जब उनको ये पता चलता कि ये असली शिवाजी नहीं है. असली शिवाजी ने उनको अपनी जगह बैठा दिया क्योंकि वो शिवाजी की तरह दिखते थे. अब शिवा काशिद वॉज अंडर अ डायलेमा कि क्या मैं ये चीज एक्सेप्ट करूं या ना करूं, क्या मैं असली शिवाजी बनकर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती होती ही कुड लूज हिज लाइफ. बट शिवा काशिद टुक द रिस्क, and this decoy
helped divert the Siddhi Johar forces, and the real Shivaji, along with his men, attempted to reach the Vishalgarh. Definitely, the Siddhi Johar forces, they came after them, but Baji Prabhu Deshpande and his soldiers, they played a crucial role in delaying the pursuing forces, and that's how the real Shivaji left the Panhala fort and went to Vishalgarh. Students, this is the first lesson of the Marathas. Sometimes an empire is not built only by the person sitting on the throne. Rather, it is built by hundreds of ordinary people willing to do extraordinary things for his king. And that is why we are going to study the rise of the Marathas today. Not just as kings and battles, but as a story of strategy, forts, understanding of geography, leadership, sacrifice, and most important, the dream of Swaraj. By the end of this session, you will be able to answer all the questions related to our Sainik School, Rashtriya Military School entrance exams. Now, we will start with the word Swaraj, because if you understand this one word, you will understand the heart of the rise of the Marathas. Without any delay, let us begin our topic. The session starts with the basic notation. It says, among the merchants, basically talking about the Europeans or the European traders. The term merchants refer to the European traders, or as called hat wearers, like the Portuguese, the English, the Dutch, the French, and the Danes also conduct trade. But they are not like other merchants. Said by Ramchandra Pant Amatya in the Adnipatra 1715. Further, he says, they are fully intent on, they are talking about these traders, they are fully intent on, मतलब उनकी इच्छा क्या है, सिर्फ ट्रेड की नहीं है, entering this land, increasing their territory, and propagating their religion. So they have arrived not with the intention of only business and trade. They have other associations also. They are obstinate people. Obstinate का मतलब होता है जिद्दी, बात नहीं सुनते हैं. And navy and gunpowder are their chief weapons. तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, that which of the followings were the characteristic of European traders? Chief weapon was navy, gunpowder. You have to be careful. Every line of this entire notes is important. And tell me, this is the only thing which you need to study for social science. इसके अलावा और कोई भी reference books इधर से उधर से उठाने की जरूरत आपको नहीं है. सिर्फ ये वीडियो आप 8 से 10 बार देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स आप अलग करते जाइए. एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल ऑल्सो गिव यू अ स्पेशल क्वेश्चनेयर in which I have prepared 200 plus questions, or almost, which is covering almost all the aspects of this chapter. Moving ahead from here, their traffic should be controlled and they shouldn't be allowed to build strong buildings. Strong building मतलब fortification उन्हें अलाउ नहीं, किला वगैरह उन्हें बनाने की अलाउ नहीं होनी चाहिए. That is what he is saying. रामचंद्र पंत अमात्या in the अग्निपत्र 1715 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. A very beautiful picture of Raigad Fort.
located in Maharashtra with a grand entrance to the palace where Chhatrapati Shivaji Maharaj was crowned in 1674. उनका राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ 1674 में, मार्किंग द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ मराठा एम्पायर. वैसे तो मराठा एम्पायर एक्टिव काफी पहले से हो गया, बट दिस इज कंसिडर्ड एज द फॉर्मल स्टार्टिंग ऑफ मराठा एम्पायर. As we are moving, let's look at the important timeline. 1630 is the birth of Shivaji. Question पूछा जा सकता है. 1646 is the beginning of Shivaji rule. 1657 is the founding of Maratha Navy, one of the turning point in the Maratha forces centralization. 1666 imprisonment at Agra by Aurangzeb and then escape from Agra. Now it's also one of the very interesting story which we are going to study later. 1674 Shivaji's coronation at Raigad Fort. 1677 Dakshin Digvijay, which is the conquest of south, the southern part of India they entered. 1680 is the death of Shivaji. Then from a period of 1682 to 1707 Mughal Maratha wars, and mind it that Mughals also cannot subdue Marathas. Moving further from here, 1754 beginning of Marathas control over Delhi. 1761 Battle of Panipat, the Marathas defeat. 1775 to 1782 First Anglo-Maratha War, Maratha victory. There were a total of 3 Anglo-Maratha War about which we are going to study in detail, which is not covered in the textbook. We are going to learn. RMS में आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के बाहर वो चले जाते हैं. Finally 1818 the third Anglo-Maratha War, and it is the end of Maratha power. This is by the Britishers. So this is the timeline which is mentioned in the textbook, and very important questions can be asked from this. Starting with, who are the Marathas? The Marathas are a group of people native to the Deccan Plateau. More specifically, the present day Maharashtra. Geographical location they are giving, Deccan Plateau can be important. They are identified with the language they speak, which is Marathi, which has had a rich and continuous literary history since the 12th century. We'll talk about it, the literary history. Basically, there were many ritual leaders or holy teachers, we can say, saints, we can say, who started creating the literary history. In this chapter, we will see the rise as a powerful political entity of Marathas that will alter the course of India's history. During the 13th century, most of the Maharashtra was ruled by Yadav dynasty. Important question पूछा जा सकता है कि मराठास के पहले who was the ruler? So they were the Yadav dynasty with Devagiri. Devagiri is present day Daulatabad as its capital. In the early 14th century, the Yadava dynasty was overcome by the Khilji Sultanate from Delhi. So that is how they have given you a little brief. Further, it is a picture of Sant Ramdas. Next, a picture of Sant Tukaram. It is a postal stamp in which the image of Sant Tukaram is
posted. Okay. Amidst such political changes, the cultural traditions continued, particularly those related to bhakti. Bhakti means devotion to the divine or a particular deity. Between the 7th and the 17th century, for spiritual upliftment, saints and seekers from several parts of India preferred the path of bhakti to merely external ritualism. These saints, coming from diverse sections of society, they composed devotional songs and poetry in the language of the masses. तो बात चल रही कि किस तरह से लिटरेचर का क्रिएशन हो रहा था, सॉन्ग्स बनाए जा रहे थे, पोएट्री बनाई जा रही थी. दे वर डिवोशनल related to God, which allowed their messages to travel far and wide. Have you ever heard the term bhakti? Some questions actually. What does it mean to you? Bhakti means devotion actually. Choose a bhakti saint from any part of India and learn about their life, their teachings and the message they shared. You can also find one of their poem or bhajan and share it with your classmate. Just a basic point given. Talking about in Maharashtra, many saints. Important question बन सकता है. Which of the following are saints of Maharashtra? Dhaneshwar, Namdev, Tukaram, Ramdas. These are the 4 names which you have to remember. They gained popularity at this time. They helped translate important texts. What important text? Upanishad question पूछा जा सकता है. कौन से टेक्स्ट को ट्रांसलेशन कर रहे थे? And the Bhagavad Gita into Marathi question पूछा जा सकता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को ये ट्रांसफर कर रहे थे या ट्रांसलेट कर रहे थे, मेकिंग देयर फिलॉसफी एसेसिबल टू द पीपल. तो मराठी लैंग्वेज में उसका ये ट्रांसलेशन कर रहे थे. सम ऑल्सो फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस सिमिलर टू द सिख गुरुज. कुछ ऐसे भी लीडर थे जो सिख गुरु की तरह सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस पर काम कर रहे थे. As a result, the society acquired a solid cultural foundation. अब इतनी सारी भक्ति की चीजें होंगी, गॉड रिलेटेड डिवोशनल चीजें होंगी, तो एक कल्चरल फाउंडेशन बनेगा, which later helped the Marathas to organize themselves into a political power. और इसी ने मराठास को यूनाइट किया, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर बनने. By the 17th century, some Maratha chiefs made early attempts at establishing sovereignty. Sovereignty means a place where every people is equal, or where every voices matter. That is sovereignty. But they proved unsuccessful until Shivaji rose to power and brought the Marathas together. तो शिवाजी पहले नहीं थे, शिवाजी के पहले भी बहुत सारे लीडर्स ने कोशिश की, लेकिन शिवाजी की तरह सक्सेसफुल नहीं हुए. Who was Shivaji? Let's start and understand his background. Foundation of Maratha power and the rise of Shivaji. In 1630, Shivaji was born to the Bhosle clan to Shahji and Jijabai. Question पूछा जा सकता है कि फादर और मदर कौन थे? शाहजी एंड जीजाबाई थे. पर बहुत ही बेसिक पॉइंट है, एक्चुअली जनरल नॉलेज का पॉइंट है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है. एट द टाइम शाहजी सर्व्ड द डेक्कन सल्तनट्स एंड वाज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली. Meanwhile, in his Jagir at Pune, Shivaji grew up under the watchful eyes of Jijabai and some trusted officials, receiving values and a good education. तो बेसिकली उनके बैकग्राउंड के बारे में है. तो पुणे में उनके पास एक जागीर थी. जागीर क्या होती है? इट इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज जनरली गिवन फॉर टैक्स कलेक्शन. तो वहां पर उनका चाइल्डहुड बताया है. जागीर, they have explained Jagir. Jagir was a piece of land given by a king or ruler to someone, usually a noble or a soldier, as a reward for their service. तो एक ऐसा लैंड जो आपकी सर्विस के लिए आपको एक इनाम दिया जाता है, उसे जागीर कहेंगे. The person who got the Jagir could collect taxes from the land and use the money to take care of their needs or help the king when needed. तो इनका क्या है, यहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्शन करेंगे और उससे जो भी टैक्स वगैरह आएगा तो वो अपना जो भी एरिया है उसको ध्यान में रखेंगे और राजा की भी जब भी उसे जरूरत पड़ेगी उसकी हेल्प वो करेंगे.
At this time, the Pune region was deeply affected by constant infightings between the Deccan Sultans, whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people. तो ये वो पीरियड की बात है कि जहां काफी सारी इनकी आपस में फाइटिंग चल रही थी, वॉर चल रही थी, डेक्कन सुल्तान की अपने आपस में ही चल रही थी, और डेक्कन सुल्तान को ही जितने भी मराठा पावर थे वो सारे उनको सर्व करते थे, जिसकी वजह से उनको हार्डशिप, मतलब मीन दे आर हैविंग अ टफ टाइम. Talking about Shivaji, when he was just 16, Shivaji launched military campaigns, first consolidating his hold over the Pune region by capturing neglected and unoccupied forts and strengthening their defenses. तो सबसे पहले इन्होंने 16 से ही मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिए. सबसे पहले इन्होंने अपना होल्ड पुणे रीजन में बनाया, और जो भी नेग्लेक्टेड या अनऑक्यूपाइड, खाली थे या जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ऐसे फोर्ट्स को उन्होंने कैप्चर किया और अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग किया. His vision of a sovereign kingdom or Swaraj grew over the years, extending to political, economic and cultural aspects, which we are going to discuss further. A painting of Shivaji made in the 1680s. Now it is in British Museum. The Sindhudurg fort near the Maharashtra-Goa border. It is one of the several naval fortifications built by the Marathas. Question पूछा जा सकता है. At which of the following is the fort which was built by Marathas? Shivaji's kingdom soon expanded. He started already the military campaigns. He soon expanded to India's west coast. And to secure access to the resourcefulness of coastal region, he felt the need to establish a navy. अब उनको ये समझ में आया कि अगर हमें कोस्टल रीजन को कैप्चर करना है तो हमें नेवी बनानी पड़ेगी. And this was a truly a revolutionary step at the time. क्वेश्चन पूछा जा सकता है that which of the following is one of the key parts of the Shivaji's expansion to the west? It was the formation or establishment of navy. By comparison, the Bijapur Sultanate, ruled by the Adil Shahi dynasty, they maintained merchant ships, but they did not possess a full-time naval force which could protect the coast. तो बीजापुर सल्तनत, आदिल शाही की जो डायनेस्टी थी, उनके पास मर्चेंट अपने ट्रेड के लिए शिप्स तो थे, पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए नेवी नहीं थी. इवन द मुगल एम्पायर्स use of a navy was very limited. Thus, the Maratha Navy was born, whose exploits became legendary. अब क्योंकि किसी की भी एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी, they Shivaji found a gap here and established his navy. To protect his people from powerful enemies, Shivaji had recourse to the tactic of guerrilla warfare. Now, what is guerrilla warfare? It uses a small group of people in a focused way with speed, surprise, knowledge of the terrain to defeat bigger armies. गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, और क्योंकि आपको अपनी ज्योग्राफी की, जहां पर जो आपकी लैंड है उसकी आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप अपनी स्पीड से सडनली निकल कर आते हैं, अटैक करते हैं, और एक बड़ी आर्मी को आप डिफीट कर सकते हैं. सडनली निकल कर आएंगे, अटैक करेंगे और वापस चले जाएंगे. His successes soon invited the wrath मतलब गुस्सा, wrath of the बीजापुर सल्तनत. अब जब इन्होंने इस तरह का अटैक करना शुरू किया तो बीजापुर सल्तनत की इधर पे ध्यान गई और इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, विच सेंट द वेटरान जनरल अफजल खान टू कन्फ्रंट हिम. तो शिवाजी से लड़ने के लिए उन्होंने अफजल खान को भेजा. Shivaji and his advisors managed to convince Afzal Khan to meet him for a one-on-one meeting at the foot of the Pratapgarh fort amid thick forest. तो शिवाजी और उनके जो एडवाइजर्स थे
उन्होंने अफजल खान से कहा कि हम 1-on-1 मीटिंग करेंगे, रादर देन हम कोई वॉर करें या हम कोई कन्फ्रंटेशन करें, हम एक 1-on-1 मीटिंग करेंगे प्रतापगढ़ फोर्ट पर। And there, Shivaji killed Afzal Khan, and the Marathas, hidden in the mountains, routed the Khan's army with guerrilla attack. तो वहां पर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को खत्म किया और उनकी आर्मी ने गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए खान की आर्मी को वहां से भगा दिया। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन था, इफ यू कुड टाइम ट्रेवल एंड मीट शिवाजी, व्हाट 3 क्वेश्चंस वुड यू आस्क हिम एंड व्हाई? नेक्स्ट, द वागनख is a small weapon shaped like a tiger's claw which Shivaji used to kill Afzal Khan in close combat. तो इसी को यूज करके छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारा। दिस इज द वागनख और द टाइगर्स क्लॉ। Try to find out more about guerrilla warfare. Which other countries in the world adopted this method? इसमें एग्जाम लायक ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है। What geographical advantage did they utilize for this? Discuss your finding in group. Geographical utilization ये होता है कि अगर आप कि अपने एरिया में आप हैं और एनिमी अगर अटैक कर रहा है तो यू नो योर ज्योग्राफी इज बेटर देन एनीबडी एल्स, तो वहां पर कैसे आपको अटैक प्लान करना है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। नाउ सून आफ्टरवर्ड्स द मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान इन्वेडेड शिवाजीज टेरिटरी विद अ बिग आर्मी फॉर 3 years। अब इसके बाद मुगल के शाइस्ता खान ने शिवाजी की टेरिटरी को 3 साल तक इन्वेड किया। फाइनली विथ ओनली अ फ्यू सोल्जर्स शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान्स कैंप एट नाइट। उसके बाद शिवाजी ने कुछ सोल्जर्स के साथ शाइस्ता खान के कैंप को नाइट में अटैक किया। द खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड, लूजिंग अ फ्यू फिंगर्स एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र। शाइस्ता खान के ऊपर इतना सडन अटैक हुआ था, कुछ उनके फिंगर्स भी कट गए थे और इसके बाद वो महाराष्ट्र छोड़ गए। दिस डेयरिंग रेड रिजेंबल्स द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। तो इसको उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक आजकल जो होती है उसकी तरह कंपेयर किया। एज अ रिटेलिएटरी, रिटेलिएशन मतलब बदला लेना, एज अ रिटेलिएटरी एक्शन फॉर द 3 year long वेव ऑफ अटैक्स शिवाजी सैक्ड सूरत। अब इसके बदले में शिवाजी ने सूरत पर अटैक कर दिया। इट इज अ वेल्दी पोर्ट सिटी ऑफ द मुगल एम्पायर इन प्रेजेंट डे गुजरात। आज भी वेल्दी सिटी है, it is called a diamond city. There he obtained enormous treasure worth almost 1 crore of rupees. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाइस्ता खान के अटैक के बाद शिवाजी ने कौन सी सिटी को अटैक किया था? सूरत को किया था। Why? It was very wealthy and extremely large sum for the time. However, he was careful not to attack religious places and even spared the house of Mohandas Parekh, a charitable man. तो उन्होंने जो भी पवित्र मंदिर वगैरह हैं उनकी उन्होंने अटैक नहीं की, और जो भी चैरिटेबल मैन मतलब ये दान पुण्य करने वाले पर्सन थे उनको भी उन्होंने अटैक नहीं किया। He sacked सूरत again after a few years. कुछ साल के बाद फिर से उन्होंने सूरत को लूटा। And these events became so famous that they appeared in the London Gazette, an English newspaper of the time. Question पूछा जा सकता है, which of the following is an English newspaper of Shivaji's time? Answer London Gazette रहेगा। एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनेंगे। Every year I say the same thing and every year the same thing gets repeated. जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से आते हैं। 10-12 बार आप ये वीडियो देख लीजिए, ये टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा। So London Gazette, English paper, which conveyed how Shivaji wrote to all European diplomatic agents in Surat, demanding immediate presence of money, failing which he would return and ruin that city. तो जितने भी लोग लंदन में थे, जो सूरत के थे, डिप्लोमेटिक एजेंट थे, सबको उन्होंने पत्र लिखा कि मुझे प्रेजेंट चाहिए, अदरवाइज मैं फिर से सूरत पर अटैक करूंगा। The sacking of Surat was a great insult to the might and the prestige of Mughal Empire. अब मुगल एम्पायर की सिटी को बार बार आप अटैक कर रहे हैं, वहां से 1 करोड़ रुपीस आप लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या है? एक इंसल्ट की भी बात है। Therefore, औरंगजेब सेंट जय सिंह, रिमार्केबल पॉइंट है, याद रखिएगा, अ डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल टू डिफीट शिवाजी। तो शिवाजी को हराने के लिए जय सिंह जी को भेजा गया।
Against him, Shivaji had to concede defeat at Purandar Fort near Pune and enter into a treaty. तो जय सिंह ने शिवाजी महाराज को पुरंदर फोर्ट में डिफीट किया और इसके बाद इन दोनों का एक एग्रीमेंट हो गया और ट्रीटी हो गई। इस ट्रीटी में एक बड़ा अमाउंट, ही हैड टू गिव अप अ साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आफ्टर द ट्रीटी व्हाट वर द इम्पैक्ट, तो उनका किंगडम भी गया और उनके बेटे को भी मुगल सर्विस में आना पड़ा। शिवाजी वॉज परसुएडेड बाय जयसिंह टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा। जयसिंह जिन्होंने शिवाजी महाराज को हराया, वो उन्हें मुगल के कोर्ट आगरा में लेकर गए, वेयर ही वॉज मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब। वहां औरंगजेब के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ा। एंड अ मुगल जनरल हुम ही हैड डिफीटेड अर्लियर, और एक मुगल जनरल भी थे जिनको पहले शिवाजी ने हराया भी था, उनके सामने इनको खड़ा किया। एंड फॉर अ ग्रेट किंग लाइक शिवाजी दिस वॉज एक्चुअली एन इंसल्ट। शिवाजी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द कोर्ट, फॉलोइंग विच औरंगजेब पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। तो औरंगजेब ने शिवाजी को हाउस अरेस्ट कर लिया। द हाउस अरेस्ट मतलब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। नाउ लुक एट दिस क्लेवर स्ट्रेटेजी वंस अगेन। टू एस्केप दिस, शिवाजी डिवाइज्ड अ स्ट्रेटेजी। He started distributing gifts to holy men and मुगल जनरल। तो उन्होंने क्या किया, हाउस अरेस्ट होने के बाद उन्होंने जितने भी उनके विजिटर्स आते थे, जितने भी सेंट, होली मैन मतलब सेंट हो गए, जितने भी मुगल जनरल्स आते थे, उनको वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए। द गिफ्ट ऑफन कंटेन्ड फ्रूट्स एंड स्वीट्स पैक्ड इन बिग बास्केट। बड़े बड़े बास्केट में फ्रूट और स्वीट्स उनको गिफ्ट दिए जाने लगे। द गार्ड्स इनिशियली चेक देम बट सून स्टॉप डूइंग सो। अब रोज रोज उसमें फ्रूट्स जाएंगे, गार्ड्स शुरू में तो चेक करते थे, बाद में गार्ड्स ने चेक करना बंद कर दिया। Expecting this, Shivaji and his son Sambhaji hid themselves in the baskets and made their escape। और एक दिन फ्रूट्स और स्वीट्स के बास्केट में शिवाजी और उनके बेटे संभाजी बैठ गए और वहां से निकल गए। औरंगजेब could never capture शिवाजी अगेन, और इसके बाद औरंगजेब कभी भी शिवाजी महाराज को कैप्चर नहीं कर पाए। You can see a picture of court scene with Shivaji on his throne receiving visitors. This is a panel in Chhatrapati Shivaji Maharaj Park, Mumbai. You can see how royal it was, right? Now, a few years later, in 1674, Shivaji was coronated. इनका राज्याभिषेक हुआ with full Vedic rites at the strong mountain fortress of Raigad. क्वेश्चन पूछा जा सकता है that at which fort the coronation of Shivaji happened or in which year it happened. 1674 Raigad Fort. His formal title after the coronation was Shri Raja Shiva Chhatrapati. इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोरोनेशन के बाद उनको क्या टाइटल दिया गया था। And like some past rulers, he started his own era, the Rajyabhishek Shaka. After this, Shivaji embarked upon a conquest of the south. ये साउथ की तरफ विजय प्राप्त करने के लिए बढ़े। This is also referred to as the Dakshina Digvijaya. दक्षिण मतलब साउथ, दिग्विजय means the conquest, which included the important and then ill-defended region of present-day northern Tamil Nadu and parts of Karnataka. This southern extension later gave the Marathas a great strategic depth against the Mughal invasion. तो यहां पर ये बता रहे हैं कि साउथ की तरफ भी ये आगे बढ़े। While in south, Shivaji forbade the Dutch from trading slaves. जब ये साउथ की तरफ बढ़े तो यहां पे इन्हें डच लोग मिले जो कि स्लेव्स का, गुलामों का ट्रेड करते थे, और उस पर इन्होंने रोक लगाई। At the time, most Europeans were capturing and selling Indians as slaves and encountered no opposition from Indian powers until Shivaji intervened. और ये एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी
कि इंडियंस को एज अ स्लेव ट्रेड करना, और कोई भी इंडियन पावर इसके अगेंस्ट में नहीं बोलती थी, लेकिन शिवाजी ने इसको रोका. हिज स्टैंड्स ऑन दिस अब्यूज शोड हिज डीप कंसर्न फॉर हिज सब्जेक्ट. तो यहां पर यह दिखाई देता है कि वो अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए कितने ज्यादा कंसर्न थे. अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर हियर, ध्यान देंगे. This orange part is the territory under Shivaji Maharaj. As you can see, it is underlined here. The orange part is territory under Shivaji Maharaj. The gray part here, Thanjavur, it is the territory under Ekoji. We will discuss about Ekoji as we will proceed. The yellow part is the foreign powers. Rest you can see the hill fort, coastal fort, the land fort, the city, the port and the river. This is the Shivaji's kingdom about 1680. A fever claimed Shivaji's life when he was 50. तो एक फीवर की वजह से उनकी डेथ हुई. He was a master strategist and a true visionary. And within his lifetime, his exploits had become legendary across India and beyond. The Europeans compared him with ancient generals like Alexander. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी महाराज को यूरोपियंस किससे कंपेयर करते थे? अलेक्जेंडर से कंपेयर करते थे. एंड द बुंदेला प्रिंस छत्रसाल, he was so inspired by Shivaji's struggle against the Mughals that he managed to create an independent kingdom of Bundelkhand divided between present day उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो शिवाजी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट अलग किंगडम बनाया. यूपी और एमपी के बीच में आता है बुंदेलखंड रीजन. द फेमस हिंदी पोएट भूषण स्पेसिफिकली केम टू महाराष्ट्र टू मीट शिवाजी एंड कंपोज्ड पोएम्स इन हिज प्रेज. यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से हिंदी पोएट ने शिवाजी महाराज के लिए पोएम्स लिखे थे, एंड सम ऑफ विच रिमेन फेमस टू दिस डे. So this is where we discuss that period after Shivaji. अब उनके बारे में हम बात करते हैं. The Marathas after Shivaji. Shivaji had two sons, Sambhaji and Rajaram. After Shivaji's death, Sambhaji became the Chhatrapati. The Marathas were then the only obstacle to total Mughal control of the Deccan. और डेक्कन रीजन में मराठास ही थे जो मुगल्स को अपोज कर रहे थे, उनके रास्ते में आ रहे थे. औरंगजेब इन्वेडेड द डेक्कन एंड कंक्वेर्ड द बीजापुर. बीजापुर इज द आदिल शाही डायनेस्टी. एंड द गोलकोंडा द कुतुब शाही डायनेस्टी. क्वेश्चन बन सकता है कि गोलकोंडा वाज अंडर विच रूलर? कुतुब शाह. बीजापुर आदिल शाह. ही देन कैप्चर्ड संभाजी and after torturing him brutally executed him. After this he recaptured Raigad, the Maratha capital. यहां पर औरंगजेब ने कैसे डेक्कन को इन्वेड किया, बीजापुर गोलकोंडा को कंक्वेयर किया, संभाजी को कैप्चर किया, उन्हें एग्जीक्यूट किया और वापस रायगढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लिया. Now, after the death of Sambhaji, the other son, Rajaram, he became the Chhatrapati. And he fled to Gingi. Question पूछा जा सकता है. It is in present day तमिलनाडु. कि शिवाजी के दूसरे बेटे राजाराम छत्रपति बनने के बाद कहां चले गए थे. The Mughal Maratha conflict thus spread to South India. The Marathas staunchly defended their fortresses and often had the upper hand over the Mughals in battles and skirmishes. skirmish का मतलब भी छोटे मोटे जो झगड़े उनके होने लगे साउथ में, वहां पर मराठास ने मुगल्स को बहुत ही स्ट्रांग टक्कर दी और परफेक्टली उन्होंने अपने फोर्ट्रेसेस सारे डिफेंड किए. औरंगजेब was thus unable to leave the Deccan and died without having succeeded in subduing मतलब किसी को कंट्रोल कर लेना, subduing the Marathas. तो ये बात चल रही है कि औरंगजेब की डेथ हो गई जिसमें वो मराठास को पूरी तरह से कंट्रोल सबड्यू नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए.
and Marathas emerged as a strong contender to the Mughals. और मुगल्स के सबसे जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रहे वो मराठास ही रहे. No longer on the defensive, the Marathas, led by Tarabai, Rajaram's queen, she made large scale inroads into Mughal territories. अब राजाराम की जो क्वीन थी ताराबाई, उन्होंने भी मुगल टेरिटरीज को इन्वेट करना शुरू किया, इवेंचुअली कंक्वेरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ ताराबाई हियर. तो उन्होंने भी बहुत सारे मुगल टेरिटरीज के इन्वेजन्स किए. ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपेंशन द मराठास देमसेल्फ अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. और जब ये सारे इतने सारे कॉन्क्वेस्ट चल रहे थे तो मराठास में आपस में भी एक स्ट्रक्चर बना. द सेंट्रलाइज स्टेट फ्रॉम शिवाजीज टाइम गिव वे टू अ मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर. देखो कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर बता रहे हैं. So while discussing the decentralization of power and authority, there is a picture of Chhatrapati Shahuji Maharaj, Sambhaji's son, who is seated right and sporting a falcon in council with Nana Sahib Peshwa. So regarding the decentralization of power, even though it was decentralized among different clans, but still nominally centered around the Chhatrapati, but with the chiefs wielding more power. In particular, the Peshwa. Peshwa is a Persian term for prime minister. तो आपस में ये कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, होलकर, सिंधिया, भोसले एंड गायकवाड़. लेकिन इन चारों का एक कॉमन पेशवा जो कि इनका प्राइम मिनिस्टर होता था. इवन दो इनमें आपस में भी इनके पास पावर होती थी, बट दे हैड अ कॉमन पेशवा हु वाज इक्विवेलेंट टू अ प्राइम मिनिस्टर. ही विल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंस इवन ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ. तो पेशवा के पास सबसे ज्यादा पावर रहेगी. पेशवा विल बी द वन हु विल लीड. इन पर्टिकुलर पेशवा बाजीराव वन and his son Nana Sahib Peshwa, they were instrumental in the pan-Indian expansion of the Marathas. तो इन्होंने ही मराठास का दिल्ली में, साउथ में एक्सपेंशन किया. The Marathas bought large part of India under their control and generally ruled them well. मराठास ने इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को अपने कंट्रोल में लिया और बहुत अच्छे से रूल किया. बट विद द रीजनल चीफ्स एक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी, दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओकेजनल इनडिसिप्लिन एंड अब्यूज इन स्टार्क कंट्रास्ट विथ शिवाजीज वैल्यू. अब क्योंकि सभी अलग अलग क्लैंस के पास अपनी अलग अलग पावर थी, एक ऑटोनॉमी बनने लगी. मतलब सब अपना अपना इंडिपेंडेंस यूनिट की तरह काम करने लगे, जिससे उनमें आपस में इनडिसिप्लिन और मे बी समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एज कंपेयर टू शिवाजीज वैल्यू, ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज हुई. लेट्स सी दैट. फॉर इंस्टेंस, द मराठास 10-year कैंपेन इन बंगाल इन्फ्लिक्टेड मच क्रूएल्टी एंड डिवास्टेशन ऑन द कॉमन पीपल. तो 10 साल का जो उनका बंगाल में कॉन्क्वेस्ट चला, उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने क्रूएल्टी की, कॉमन पीपल को बहुत डिवास्टेट किया, मार्केट्स खराब किए. इन द नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन द मराठास ब्रीफली कंट्रोल्ड द एरियाज ऑफ लाहौर. नॉर्थ में बता रहे हैं कौन कौन से एरिया इन्होंने कंट्रोल किए. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लाहौर, अटॉक एंड इवन पेशावर विच इज द मॉडर्न डे पाकिस्तान. तो ये नॉर्थ में उनके कंट्रोल में रहे. दे फॉट विद द अफगान्स एंड डिस्पाइट सफरिंग अ डिजास्टर्स डिफीट एट पानीपत इन 1761, दिस इज द Third Battle of Panipat, they quickly recovered during the time of Peshwa Madhavrao I. तो यहां पर ये बता रहे हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अफगान के साथ वो हारे, लेकिन उसके बाद भी तुरंत उन्होंने अपनी शक्ति को वापस बना लिया. एंड एट दैट टाइम ही वाज द पेशवा माधवराव I who was the front runner in this.
Under the leadership of Mahaji Shinde, also known as Mahaji Scindia, they went on to recapture Delhi in 1771. फिर से दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर किया 1771 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महाजी सिंधिया. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इवन तो यहां पर जो लीड कर रहे थे वो पेशवा माधवराव वन थे, जिन्होंने मराठास को वापस रीयूनाइट किया, लेकिन दिल्ली को 1771 में रिकैप्चर करने में महाजी सिंधिया का बहुत बड़ा रोल था, विच रिमेन्ड अंडर देयर कंट्रोल टिल द ब्रिटिश कैप्चर्ड इट 3 decades लेटर. और उसके बाद ये दिल्ली मराठास के ही कंट्रोल में रहा. कब तक? जब तक कि ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर नहीं कर लिया. ब्रिटिशर्स इवेंचुअली हैड 3 एंग्लो मराठा वार. मराठास के साथ उनके 3 वॉर हुए, एंड इन द लास्ट वन दे डिफीटेड द मराठा पावर. तब तक दिल्ली मराठास के कंट्रोल में ही रही. इन द लेटर हाफ ऑफ 18th century, द चीफ राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वर द मराठास. और कोई भी इतनी बड़ी सुपर पावर बची नहीं थी. 1750s के आसपास की बात चल रही है, जहां पर ब्रिटिश के एक ही ओपोनेंट बचे थे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो मराठा थे. 3 एंग्लो मराठा वॉर्स as they are called, they were fought between 1775 and 1818. This we will discuss in detail as we will proceed in the topic. 3 वॉर हुए owing to the Marathas increased internal disunity. Understand the reason. अब देखिए यहां से रीजन क्या बन रहा है, उनके डाउनफॉल का, उनके डिक्लाइन का रीजन बना रहा है इंटरनल डिसयूनिटी एंड द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज ऑफ द ब्रिटिश. 2 मेजर रीजन है. पहला, मराठास के आपस में जो डिविजन्स हो रहे थे उनसे उनकी यूनिटी खराब हुई, और ब्रिटिशर्स जो आए थे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस थे एज कंपेयर टू मराठास. सो ब्रिटिशर्स सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर. सो आफ्टर 3 एंग्लो मराठा वॉर, मराठास की पावर डिक्लाइन हो गई. In effect, the British took India from the Marathas more than from the Mughals or any other power. अब ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा फोकस जो है वो मुगल्स के ऊपर है. And according to them, after Aurangzeb, the last powerful ruler, it was the बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली के लाल किला में रहते थे और जिनको वहीं से काला पानी भेज दिया गया था जहां उनकी डेथ हुई. और उसके बाद कोई भी किसी भी मुगल डिसेंडेंट को किंग नहीं माना गया. दैट इज द ओल्ड. बट अब यहां पर ऐसी बात बताई जा रही है कि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली जो पावर ली वो मराठा से ली. नाउ हियर इन दिस यू कैन सी द मराठा एम्पायर एंड ऑल इन द saffron color. Maratha Empire including the tributary state. All this orange color is saffron color rather, is the Maratha Empire, and along with the tributary states. The black dots large are the cities ruled by Maratha and allies. And then there are the other Indian rulers. This is the extent of Maratha Empire in 1759. Next, about Nana Fadnavis. A powerful official under the Peshwas is credited with organizing the first pan-Indian anti-British alliance. Question पूछा जा सकता है. Who was the Maratha official under the Peshwa who organized the first pan-Indian, means across India इन्होंने anti-British alliance बनाया. Important point है. He even united with old adversaries. Adversary मतलब जो हमारे दुश्मन थे, अपने पुराने दुश्मनों से भी हाथ मिलाया, like हैदर अली of Mysore and the Nizam of Hyderabad in this endeavor. Question पूछा जा सकता है. Which of the following are the adversaries of Maratha Empire by which they reunited? A mural of a British officer surrendering before Nana Fadnavis and Mahaji Shinde after the first Anglo-Maratha war. पहला जो Anglo-Maratha war हुआ था इसमें Marathas defeated the British army, but in the second and third the British people defeated, and it was actually a result of their internal disharmony. Coming to the next an important point, question पूछे जा सकते हैं. Maratha administration, the civilian administration. Shivaji instituted a relatively centralized administration for his kingdom. He abolished the hereditary post. तो उन्होंने सबसे पहले क्या खत्म किया? हेरिडिटरी पोस्ट हम खत्म करेंगे. What is the meaning of this? Generally practiced under the sultans or the Mughals. तो जनरली सुल्तान मतलब ऐसे लोग जो अपनी ही किंगडम के राजा भी हैं और
कमांडर भी, उनको सुल्तान कहते हैं। तो उनके यहाँ ये प्रैक्टिस थी कि जो भी पोस्ट है वो उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके बेटों को दे दी जाएगी। ये प्रैक्टिस शिवाजी ने खत्म की। ही ऑल्सो फिनिश्ड द लैंड असाइनमेंट्स एंड पेड अ सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। लैंड असाइनमेंट मतलब जो रिवॉर्ड में लैंड दी जाती थी और टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी दे दी जाती थी, इसको भी शिवाजी ने खत्म किया। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको स्टेट ट्रेजरी से, स्टेट के पास जो खजाना है उसमें से उनकी सैलरी दी जाती थी। मेनी ऑफिशियल्स वर पीरियोडिकली ट्रांसफर्ड एज वेल। ऑल दीज 3-4 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वाज द की पॉइंट्स ऑफ शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑफिशियल्स का ट्रांसफर भी किया जाता था। क्यों किया जाता था? एंश्योरिंग दैट दे वुड नॉट हैव एनफ पावर टू डिक्टेट टर्म्स टू द किंग। तो अगर कोई एक ऑफिशियल है किसी एक जगह बहुत लंबे समय तक रह जाए तो अपना इन्फ्लुएंस बना ले सकता है, और इस चीज को रोकने के लिए उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। शिवाजी ऑल्सो गेव पेंशन्स टू विडोज ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन बैटल्स, even offering military posts to their sons, thus demonstrating his care for the soldiers and their families। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर बैटल में किसी सोल्जर्स की डेथ वगैरह हो गई तो उनके जो फैमिली मेंबर्स, उन्हें पेंशन दी जाती थी, उनके जो सन है उनको मिलिट्री में पोस्ट दी जाती थी। और इससे वो बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि शिवाजी वॉज अ केयरिंग मैन टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट। Here you can see the coins minted by Shivaji. Shivaji minted gold and copper coins in his own name, signifying his sovereignty. The use of Devanagari script was also an assertion of his cultural identity. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने जो गोल्ड और कॉपर के कॉइन मिंट किए कौन सी स्क्रिप्ट में किए थे? देवनागरी स्क्रिप्ट में किए थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत ये सब आप मत लगाइए, इट वॉज देवनागरी। Shivaji issued strict instructions to his officials not to mistreat the subject or to forcefully grab even a blade of grass from them। तो कह रहे हैं कि किसी भी अपनी प्रजा के लोगों के साथ आप मिसबिहेव ना करें, उन्हें इल ट्रीट ना करें, उनसे एक छोटा सा घास का टुकड़ा भी आप ना लें। In one of the letters issued to his officials, Shivaji says, wood from big trees like teak is required for the navy। नेवी बनाने के लिए, it was famous for नेवल फोर्सेस, नेवी बनाने के लिए हमें टीक की बड़ी बड़ी पेड़ों की लकड़ियां चाहिए। इफ नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन प्रोसीड। तो अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है तो पहले आप परमिशन लीजिए पेड़ काटने के पहले। अदर ट्रीज लाइक मैंगो एंड जैक फ्रूट आर ऑल्सो यूजफुल बट डू नॉट टच देम बिकॉज सच ट्रीज टेक मेनी ईयर्स टू मैच्योर एंड द पीपल लुक आफ्टर देम लाइक देयर चिल्ड्रन। तो ये बता रहे हैं कि हाउ ही वॉज विलिंग टू कंजर्व बोथ द नेचर एज वेल एज देयर पीपल, कि अगर आप लकड़ियां वगैरह काट रहे हैं, अगर फ्रूट गिविंग आप प्लांट्स को आप अफेक्ट कर रहे हैं तो आप परमिशन लेना जरूरी है और कोशिश करें कि नहीं करें हम। इफ यू कट देम विल देयर सॉरो एवर एंड। इफ यू अकॉम्प्लिश समथिंग बाय ऑप्रेसिंग अदर्स, कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती आप किसी के साथ किसी का पेड़ काट दोगे या किसी के साथ ऐसे काम करोगे तो ये सारी चीजें दे विल पेरिश सून अलॉन्ग विद द ऑपरेसर। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो भी खत्म हो जाएगी, और जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स को परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती उनकी प्रॉपर्टीज को वो कॉन्फिस्केट कर रहे हैं या एनेक्स कर रहे हैं, तो उनके साथ भी बुरा होता है। देयर इज हार्म इन द एब्सेंस ऑफ सच ट्रीज एज वेल। और एसिड प्लांट्स अगर हमारे पास नहीं होंगे, जो कि जैक फ्रूट और मैंगो का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसी ट्रीज की कमी भी नहीं होनी चाहिए, इनका एब्सेंस नहीं होना चाहिए। देयरफॉर डू नॉट यूज फोर्स इन एनी सर्कमस्टेंस। बेस्ड ऑन शिवाजीज लेटर, what you can tell about his values as a ruler, हम बोल सकते हैं कि he was very careful and respectful towards his subject. Coming to the next and very important point, Shivaji has council of 8 ministers to assist him for the administration. इतना बड़ा एम्पायर था, अकेले नहीं हो पाता, so he had a group of ministers, council of ministers. क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The first finance minister is Amatya. Prime Minister is Pradhan. Sachiv is the Land Revenue Minister. Nyayadhish is the Chief Justice. Pandit Rao is the Head of Religious Affairs. इन सभी में से किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेनापति the Commander in Chief. Sumant the Minister of Foreign Affairs. Mantri is the Intelligence Minister. And Chhatrapati, heading them all, was the sovereign king. Shivaji had the Ashtapradhan Mandal or council of 8 ministers to assist him with his administration. Important point है,
क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं. द मराठास ऑफन लेवाइड टैक्सेस कॉल्ड चौथ, मीन्स 25% taxes, and Sardeshmukhi is an additional 10% to चौथ. तो 25% टैक्स के ऊपर और 10% टैक्स, अलग अलग टर्म है चौथ एंड सरदेशमुखी. फ्रॉम प्रोविंसेस दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम, इंक्लूडिंग प्लेसेस इन द डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया. तो जो डायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस में नहीं थे, कंट्रोल में नहीं थे, उनसे वो ये टैक्स लिया करते. इन रिटर्न द मराठास प्रोटेक्टेड दोज प्रोविंसेस, टैक्स के बदले में उन्हें प्रोटेक्शन देते थे, एंड दे डिड नॉट इंटरवीन इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. द मुगल्स ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज, एंड ओवर टाइम सम ऑफ दीज प्रोविंसेस बिकेम अ पार्ट ऑफ द मराठा एम्पायर. तो मराठा एम्पायर ने उन्हें इस तरह का प्रोटेक्शन दिया और बहुत ही लंबे समय तक दिया. एंड आफ्टर दैट अंडर द रूल ऑफ शिवाजी ऐसे कई सारे प्रोविंसेस जो कि अ काइंड ऑफ ऑटोनॉमी में थे लेकिन मराठा एम्पायर को टैक्स पे करते थे, वो इवेंचुअली मराठा एम्पायर में जाकर मिक्स हो गए. इन द 18th century द मराठास ऑफन अडॉप्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ कॉइनेज. 18th century में मराठा ने मुगल स्टाइल के जो कॉइन स्ट्रक्चर थे उनको अडॉप्ट किया, ओइंग टू इट्स पॉपुलैरिटी, बट एडेड देयर ओन कल्चरल सिंबल्स. तो कॉइन तो उन्होंने मुगल स्टाइल में बनाया बट सिंबल्स उसके बदल दिए. फॉर इंस्टेंस दिस रेयर मराठा कॉइन नोन एज गणपति पंत प्रधान रूपी, मिंटेड इन द अर्ली 19th century बाय द पटवर्धन्स. इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. गणपति पंत प्रधान रूपी मराठा कॉइन है, पटवर्धन ने इसको मिंट किया. पटवर्धन वर द जनरल्स अंडर द पेशवा. दे फीचर इंस्क्रिप्शन इन 2 स्क्रिप्ट. इसमें 2 स्क्रिप्ट होती थी, देवनागरी भी होती थी और पर्सियन भी हो सकती थी, दोनों होती थी. वन साइड इज एन इन्वोकेशन टू गणपति, द लॉर्ड गणेशा, while the other declares loyalty to the Peshwa, often referred to as पंत प्रधान in मराठी. तो दो साइड में, ये दोनों साइड में, एक साइड में गणेश जी का इंक्रिप्शन था और दूसरी तरफ पेशवा. Here you can see the coin. One side you can see written Ganpati, and the second side you can see written Pant Pradhan. After the civilian administration, let's come to the military administration, a most important one. The Maratha armed forces were divided into 3 parts. 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ था: इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी. The cavalry was made up of 2 types of soldiers. Cavalry मतलब जो घोड़े पर अटैक करेंगे. First is the Bargirs. Bargirs whose horses and equipments were paid off by the state, and the Shieldar. तो 2 तरह के कैवलरी के सोल्जर्स होते थे. पहले एक ऐसे होते थे जिनके हॉर्सेस, इक्विपमेंट, ये सभी इनका खर्चा कौन देता था? स्टेट देती थी. और दूसरे होते थे शीलेदार. शीलेदार whose horses and equipments were paid off बाय द सोल्जर्स देमसेल्फ. शीलेदार वो होते थे जो अपने हॉर्सेज, अपने इक्विपमेंट सारे खुद ही उसका वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते थे. इन द 18th century द मराठास ऑल्सो नोटिस्ड द सुपीरियोरिटी ऑफ यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स एंड आर्टिलरी. यूरोपियन स्टाइल मीन्स फ्रेंच की बात हो रही है, डच की बात हो रही है, ब्रिटिश की बात हो रही है, पोर्चुगीज की बात हो रही है. तो उन्होंने देखा कि कैसे वो एक स्मॉल नंबर में होते हुए भी अपने डिसिप्लिन और अपने अग्रेसिव अटैकिंग स्टाइल की वजह से बड़ी आर्मी को डिफीट करते हैं. और इस चीज ने मराठास को काफी इंप्रेस किया. एंड दे ऑल्सो ट्राइड टू रेज एंड रिक्रूट सच ट्रूप्स. इन पर्टिकुलर महाजी शिंदे हैड अ लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. Swords and lances were the preferred weapons of the Marathas. However, they also used guns in sizable numbers. तो उनके पास guns भी थे, swords भी थे, lances भी थे. Rockets were used in military campaigns from the days of Shivaji himself. And by 1770, metal tube rockets were also being used. As we saw earlier, forts were initially the mainstay of Maratha power. तो ये बात कर रहे हैं कि सबसे जो strong मराठास एम्पायर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर रहा वो उनके फोर्ट्स रहे. उन्होंने इतने मजबूत किले बनाए और वहां से इस तरह के उन्होंने अटैक किए, इस तरह की उन्होंने वॉर किए कि सामने वाले ओपोनेंट को उन्होंने उसी से बीट किया. शिवाजी कंट्रोल्ड
and built a considerable number of forts. से बात कर रहे हैं कि forts was the mainstay, was a key element, as they were essential to strategically control important routes and shelter the army when engaging in guerrilla warfare. Forts में important जितने भी रूट थे उन्हें कंट्रोल करना है, तो उस रूट्स पे फोर्ट बनाए इन्होंने, और गुरिल्ला वॉरफेयर में भी ये उनकी हेल्प करता था. रामचंद्र पंत अमात्या, द फाइनेंस मिनिस्टर of Shivaji, in his work Adnipatra, the royal edict, he explains. You can see the pictures of weapons used by the Marathas. Let's get back. Say forts are the core of the state. बता रहे हैं कि फोर जितने भी किले हैं वो सारे बेस लाइन है. In their absence, the land gets devastated in the face of invasion. अगर फोर्ट नहीं होंगे, वहां हमारे आर्मी नहीं होगी, तो कोई भी उस लैंड को डिवास्टेट करेगा, इन्वेड करेगा. देयरफॉर ऑल द फॉर्मर किंग्स सिक्योर्ड द कंट्री बाय बिल्डिंग फोर्ट. तो जितने भी राजा थे, पेशवा थे, सभी ने ज्यादा से ज्यादा फोर्ट बनाए. दिस किंगडम, मराठा किंगडम, वाज क्रिएटेड बाय द लेट ग्रेट मास्टर शिवाजी फ्रॉम फोर्ट्स अलोन. तो बात कर रहे हैं कि इतने बड़ी जो किंगडम बनी है ये सिर्फ फोर्ट बनाने की वजह से और उसके बेसिस पर जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसी से चली है. अ ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब इन्वेडेड दिस किंगडम, conquered great empires like Bijapur and Bhaganagar, but it was due to forts that the Maratha state survived despite decades of onslaught. तो बहुत लड़ाइयां मराठा एम्पायर से हुई, लेकिन कभी वो हरा नहीं पाए, कैप्चर नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास फोर्ट्स थे. मैरीटाइम सुप्रीमेसी, as we saw, Shivaji created a navy to secure the west coast. तो वेस्ट कोस्ट पूरा उन्होंने कैप्चर किया. In the 18th century, Kanhoji Angre guided the Marathas to victory in many naval battles. तो उनके नेवी कमांडर कान्होजी आंग्रे. थैंक्स टू अ क्लेवर यूज ऑफ ज्योग्राफी एंड बैटल टैक्टिक्स. तो जितने भी नेवल बैटल हुए, कान्होजी आंग्रे ने सभी में विक्ट्री दिलाई. ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज था, लड़ना जानते थे, टैक्टिक्स थे. डिस्पाइट द मराठा शिप्स नॉट बीइंग एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एज द यूरोपियन वंस. इतने शिप उनके एडवांस नहीं थे. यूरोपियन शिप्स जितने होते थे उसमें कैनन्स लगे होते थे, एडवांस आर्टिलरीज होती हैं, पर मराठा शिप इतनी एडवांस ना होकर भी उन्हें हरा देती थी. एट द टाइम द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन इन इंडिया वाज देयर नेवीज. यूरोपियन की सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो अपने रूट से वो आते थे, नेवी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी. दे फोर्स्ड इंडियंस टू परचेज देयर नेवल ट्रेड पास. पोर्चुगीज ने एक जो इंडियन रूट था, जो सी रूट था, उस पर एक रूल बना दिया कि अगर इस रूट को क्रॉस करना है, ट्रेड करने के लिए अगर इस रूट को क्रॉस करते हुए जाना है, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, टोकन लेना पड़ेगा. उसे कार्टस कहते थे पोर्चुगीज. सो दे हैव टू परचेज दिस पास, कार्टस, एट अ प्राइस, एंड एनी शिप विदाउट अ पास वाज कॉन्फिस्केटेड. और अगर आप ये पास नहीं लेंगे तो आपका शिप हम जब्त कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे. And now here the twist, the Marathas challenged this practice and started demanding passes from the Europeans themselves. Marathas ने इस practice को challenge किया कि हम टोकन नहीं देंगे, हम पैसे नहीं देंगे, आप हमें पैसे देंगे. They started demanding passes from the Europeans, who showed their frustration by labeling Kanhoji Angre as a pirate. तो यूरोपियंस ने मिलकर, क्योंकि कान्होजी आंग्रे जितने भी नेवल अटैक्स होते थे, बैटल्स होते थे, उन्हें लीड करते थे, तो उन्होंने कान्होजी आंग्रे को पायरेट कह दिया. हियर यू कैन सी द शिप्स, द मराठा शिप्स अटैकिंग द इंग्लिश शिप्स. यू सी दीस स्मॉल वंस आर द मराठा शिप्स, दीस इंग्लिश वंस आर द बिगर वंस. बट शिप्स वर Maratha ships were large in number. In 1665, 4 ships from Shivaji's fleet reached Muscat, the capital of Oman. The ruler there captured them and arrested the men on board. 4 शिप शिवाजी के मस्कट पहुंचे, जहां के राजा ने उनके शिप को कैप्चर कर लिया, जितने भी लोग थे उन्हें अरेस्ट कर लिया. He also prepared a few ships to attack Shivaji's coastal possessions. और उन्होंने ये प्लान किया कि अब हम वेस्टर्न इंडिया में जाएंगे, जहां शिवाजी का कोस्टल नेवल एरिया है, वहां जाकर हम अटैक करेंगे. बट ऑन हियरिंग दैट शिवाजीज नेवी कंटेन्ड मोर देन 100 शिप्स, ही रिट्रीटेड इनसाइड द हार्बर विद हिज शिप्स. पर जब उनको ये पता चला कि मराठा एम्पायर के पास, शिवाजी के पास 100 से ज्यादा शिप हैं, तो वो रिट्रीट मतलब पीछे आ गए और उन्होंने अटैक का प्लान कैंसिल किया. जुडिशियल सिस्टम. The Marathas had an efficient judicial system.
रिमार्केबल फॉर इट्स मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, द डेथ पेनल्टी। तो इन्होंने डेथ पेनल्टी को थोड़ा सा मॉडरेट किया। कैसे किया, ध्यान दीजिए। पंचायत, नाउ दिस इज नॉट दैट ग्रास रूट डेमोक्रेसी वाला पंचायत नहीं है ये, दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद द करंट डे पंचायत, अ गवर्नमेंट बॉडी। इट वॉज अ लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड प्रोमिनेंट मैन। इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे और कुछ नामी गिरामी लोग होते थे, एंड द मेन बॉडी दैट डिलीवर्ड जस्टिस। तो ये जस्टिस डिलीवर करने का काम करती थी। एन अपील कुड बी मेड टू अ मराठा चीफ इन केस ऑफ अ अनसैटिस्फैक्टरी वर्डिक्ट। और अगर किसी को इस पंचायत में सही न्याय ना मिले तो वो मराठा चीफ के पास जाकर अपील कर सकते थे। एडिशनली in various prominent towns such as पुणे एंड इंदौर, आप जो बड़े जो टाउन्स थे, पुणे था, इंदौर था, द कोतवाल और द पुलिस वर ऑल्सो डिप्लॉयड टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द सिटी। तो वहां पर कोतवाल या जो पुलिस है वो भी वहां पर रखी गई थी ताकि सिटी में प्रॉपर ऑर्डर रहे, लॉ रहे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहे। ट्रेड नेटवर्क्स, शिवाजी एनकरेज ट्रेड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड हिमसेल्फ। ट्रेड को बहुत बढ़ावा देते थे, खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। He and his officials had their own ships, which they regularly sent to ports as far away as Mocha in Yemen. पूछा जा सकता है कहां पर उनके ships जाते थे, यमन, Muscat in Oman and Malacca in Malaysia. Some of these ships carried cargo like gold, textile, ये सारी चीजें लेकर ट्रेड करने ये लोग निकलते थे। Roads were constructed and maintained. ट्रेड सिस्टम के लिए रोड इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क के लिए रोड इंपॉर्टेंट है। इन प्लेसेस सच एज ओडिशा इन द 18th सेंचुरी, अ नेटवर्क ऑफ फेरीज वाज मेंटेन्ड फॉर रिवरीन ट्रांसपोर्ट। तो रिवर वाया रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इन्होंने चैनल बनाया हुआ था। दिस इज शिवाजीज सील। सील मीन्स अथॉरिटी। कल्चरल रिवाइवल, द मराठास contributed substantially to India's cultural developments. Shivaji's vision of Swaraj is evident in his seal, which carried a Sanskrit inscription. उनकी सील है, संस्कृत में लिखी हुई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉइन में देवनागरी थी, सील में संस्कृत थी। A notable departure from the prevalent Persian seals. तो इसके पहले जो पर्शियन सील चलती थी उससे थोड़ी है। दिस सील, that is the authority, seal का मतलब authority होता है, of Shivaji, the son of Shahji, waxing like the new moon, revered by the world, reigns for the welfare of the people. ये इस तरह का इन्होंने अपना सील बनाया था। Shivaji also commissioned a treatise called Raj Vyavhar Kosh with the aim of promoting the Marathi language. क्वेश्चन बन सकता है, मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या फॉर्मेशन की थी? राज व्यवहार कोश की फॉर्मेशन की थी। इट प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट्स फॉर द प्रिवेलेंट पर्शियन वर्ड्स यूज्ड इन द डिप्लोमेटिक एक्सचेंज। अब ये लोग ट्रेड करते थे, जब जगह जगह जाते थे तो जो पर्शियन वर्ड्स थे उनके संस्कृत वर्ड, संस्कृत इक्विवेलेंट वर्ड इन्होंने बनाए, जिसकी वजह से मराठी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा बाहर के वर्ड्स नहीं आए। As a result of which the percentage of foreign loan words मतलब जो फॉरेन से हम अपनी लैंग्वेज में जो वर्ड लेते हैं। अब क्योंकि ये लोग तो जो भी फॉरेन वर्ड्स देखते थे उसका संस्कृत इक्विवेलेंट बना लेते थे, तो फॉरेन वर्ड्स मराठा डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा नहीं हुए। These words decreased considerably. तो जो भी फॉरेन वर्ड्स हम यूज करते थे ट्रेड में, बातचीत में, वो हम बहुत कम हुए। शिवाजी वॉज अ डिवोट हिंदू who respected other religions while upholding his own. His saffron-colored flag was adopted by all Marathas. He rebuilt desecrated temple. Desecrated मतलब जो खंडहर हो चुके हैं, बहुत खराब हो चुके हैं। They promoted Sanskrit and Marathi literature, religious institutions and traditional art. तो इन सारी चीजों को वो प्रमोट करते थे। But इतना सब करने के बाद भी he contributed most to the revival of ancient Indian culture and values by giving people a demonstration that mighty kingdoms and empires could be defeated and the Marathas could maintain
expand and administer an empire of their own. तो वो बता रहे हैं कि बड़े से बड़े किंगडम को, एम्पायर को भी आप हरा सकते हैं बाय यूनिटी, बाय राइट स्ट्रैटेजी, और मराठास भी अपना खुद का एम्पायर मेंटेन कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर कर सकते हैं. In the next they are talking about the mighty Maratha woman. Tarabai was a fearless Maratha warrior queen who ruled in the early 18th century after the death of her husband Rajaram. तो राजाराम की डेथ के बाद उनकी क्वीन ताराबाई ने रूल किया. Realizing that with the presence of Aurangzeb and the Mughal army in the Deccan, North India was unprotected. अब नॉर्थ इंडिया में औरंगजेब कंप्लीटली रूल कर रहे थे, डेक्कन एरिया में मुगल आर्मी भी लोकेटेड थी. तो ताराबाई को यह समझ में आया कि नॉर्थ इंडिया को हमें प्रोटेक्शन करना जरूरी है. शी ऑर्गेनाइज्ड लार्ज मराठा आर्मीज एंड सेंड देम टू इन्वेड मुगल टेरिटरीज इन द नॉर्थ. दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर कि कैसे strategically she invaded the Mughal Empire. In that sense, she was the architect of the northward Maratha expansion. Question पूछा जा सकता है, which among the following Maratha women was the architect of northern expansion of Maratha Empire? Her sense of military strategy and her tenacity. Tenacity मतलब होते है जिद. Outsmarted the Mughal Empire. Her sense of military strategy and the tenacity outsmarted the Mughal Empire and preserved Maratha independence during a critical period. So basically, they have given an overview of Maratha women. Here you can in a picture see Tarabai in battle, painting by M.V. Dhurandhar. You can see how bravely she is fighting. Next, here you can see Ahilyabai Holkar. A postage stamp commemorating Ahilyabai Holkar. Ahilyabai Holkar, a scion of Holkar dynasty, mostly in the central part, the Indore region, one of the chief families instrumental for the Maratha expansion in northern India. During the 18th century, this dynasty ruled a kingdom of considerable extent in central India around present day Indore. तो इंदौर का जो रीजन है वहां पर इनकी डायनेस्टी ने रूल किया और काफी बड़े एरिया में रूल किया. Even after losing her husband and son, she bravely governed the state for 30 years, administering it wisely while caring for the common people. तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने हस्बैंड और सन की डेथ के बाद भी इस रीजन को, होलकर डायनेस्टी को गवर्न किया. अहिल्याबाई वॉज अ डिवोट पर्सन. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है. रिस्टोर्ड एंड बिल्ट थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स, रोड्स थ्रू आउट इंडिया, फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ टू रामेश्वरम इन द साउथ. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Most famously, she rebuilt the Kashi Vishwanath temple in Varanasi. Very important point. That had been destroyed by Aurangzeb, and the Somnath temple in Gujarat that had been destroyed by Mahmud of Ghazni. तो इन्होंने ये दोनों टेम्पल को रीबिल्ड किया. अहिल्याबाई होलकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट दैट कंटिन्यू टू थ्राइव टुडे. तो एक खास तरह की इनकी बुनाई होती थी, बुनकर होते थे, महेश्वर वीविंग उसे कहते थे. तो उसको उन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया. नेक्स्ट इज द मोदी स्क्रिप्ट. मोदी स्क्रिप्ट इज अ कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी. इट वाज द मेन स्क्रिप्ट यूज्ड बाय मराठास फॉर देयर करस्पॉन्डेंस. मराठास अपने आपस में जो बात करते थे वो कौन सी स्क्रिप्ट में बात करते थे? मोदी स्क्रिप्ट में बात करते थे. दिस इज अ पिक्चर, यू कैन सी अ सैंपल ऑफ छत्रपति शाहू महाराज हैंड राइटिंग इन द मोदी स्क्रिप्ट. कर्सिव है, देखो सारे एक दूसरे से टच हो रहे हैं. Shivaji's example continued to inspire his successors. For instance, the Bhosles of Nagpur emerged as the enthusiastic supporters of local culture and tradition. तो जिस तरह शिवाजी लोकल कल्चर को
लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, उन्हीं से इंस्पायर होकर उनके सक्सेसर्स भोसले ऑफ नागपुर, इन्होंने भी लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट किया. एंड द वर्शिप ऑफ द डीटी जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ पुरी में जो टेम्पल है उसे किसने स्टार्ट किया? दिस स्टार्टेड बाय भोसलेस ऑफ नागपुर, which was often interrupted during the Mughal rule, but was revived with the support of Marathas. तो जगन्नाथपुरी के टेम्पल को रिवाइव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मराठास का रहेगा. बट परहैप्स द मोस्ट इंप्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन केम फ्रॉम अ फ्यू रिमार्केबल मराठा वुमेन, एंड लेट अस डिस्कस दे आर सेइंग अबाउट टू ऑफ देम. The two which we have discussed were the Rani Ahilyabai and Tarabai. Next, in focus, Thanjavur. Now, in the picture, we have seen that this was also one of the territories of Maratha Empire. Let us turn southward to witness another example of cultural contribution. Ekoji, the half-brother of Shivaji, conquered the Thanjavur region, present-day Tamil Nadu, in the late 17th century, marking the beginning of Maratha rule in this area. The Thanjavur Marathas specially helped create a syncretic culture. Syncretic culture means Thanjavur is in Tamil Nadu, Maratha, they both have different language, but they created a combination or harmony between these two language and culture that was rich and full of innovation. They were great patrons of the arts, and many of the rulers themselves were poets and dramatists. Of all the Thanjavur Maratha rulers, the contribution of Sarfozi II are the most notable. He was well versed in many Indian and European languages and wrote a Marathi play named Devendra Kurawanji, where he describes world geography in detail as was known at the time. Question पूछा जा सकता है, मराठी प्ले का नाम क्या था, किसने लिखा था, क्या मेंशन किया गया था उसमें? Sarfozi patronized many talented musicians, and it was during his time that modern Carnatic music took shape, as did the early stages of famous classical dance form of Bharatnatyam. तो इन्हीं के पीरियड में इन दोनों का डेवलपमेंट हुआ, कार्नेटिक म्यूजिक का और भरतनाट्यम का. Sarfozi was quite interested in medicine and established a Dhanvantri Mahal. Dhanvantri Mahal is a center of medicine that offered free treatment of diseases using both Indian and Western medicine. Question बन सकता है. He also started a printing press, the first such example in India by a native ruler. सबसे पहले उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की. He got the history of Bhosle family inscribed on the walls of Brihadishwara temple at Thanjavur. क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो भोसले फैमिली की हिस्ट्री उन्होंने इंस्क्राइब कराई, which is one of the largest single inscriptions in India, a record for posterity. Posterity मतलब एक इस तरह का रिकॉर्ड जो आप छोड़ते हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए, फ्यूचर जनरेशंस को इंप्रेस करने के लिए या उनके लिए एक एग्जाम्पल आप सेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड ऑफ पोस्टेरिटी. The cultural environment of Thanjavur was multilingual. अलग अलग भाषाएं लोग बोलते थे, with a mix of many influences. The local Tamil culture, the Telugu culture of the former rulers, and the current rulers. Marathi culture interacted with each other freely. तो तमिल लैंग्वेज थी, तेलुगु लैंग्वेज थी वहां पर, और मराठी लैंग्वेज भी आपस में इनका यूनियन हुआ. A traditional Thanjavur style painting featuring delicate gold foil work that lends it a rich, radiant appearance. Gold work आप देख सकते हैं इसमें. This style flourished under the patronage of Marathas. Thanjavur style painting है, मराठास ने इसको प्रमोट किया. Talking about the dance form Bharatnatyam. This dance form has a deep connection with the Marathas. Here you can see the Marathi inscription on the wall of Brihadishwara temple in Thanjavur. It is the history of the Bhosle family. The Maratha legacy.
The Maratha rule challenged Mughal dominance and established the largest Indian empire before the British took over the subcontinent, controlling much of the central and northern India. लेगेसी की बात है, उनका स्ट्रक्चर बताया है. They set up a new way of governing with an efficient administration and also revived the local Hindu traditions without religious discrimination. उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, कैसे उन्होंने हिंदू कल्चर को, ट्रेडिशन को रिवाइव किया और किसी भी तरह का भेदभाव उन्होंने किसी भी दूसरे रिलीजन के साथ नहीं किया. This brave fight against oppressive rule and foreign power was driven by the fiery ideal of Swaraj. और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो, उनका जो गोल था, वो आइडल था, वो स्वराज था, कि हम सभी का शासन रखेंगे, सभी को इक्वालिटी देंगे. Later it inspired many Indians to believe they could govern themselves, planting the early seeds for India's freedom movement. और यहीं से हमारे अंदर एक फीलिंग आई कि हम अपनी गवर्नेंस, अपना एडमिनिस्ट्रेशन हम खुद कर सकते हैं. टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस टॉपिक पर हम ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम 500 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे. उससे बाहर एग्जाम में कुछ पूछे जाने के चांसेस नहीं.